Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samya Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to divide a lecture on operant conditioning and classical conditioning, which is related to neuropsychology. It takes only 10 to 15 minutes to complete a lecture. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. First of all, classical conditioning and operant conditioning is related to language learning, and we use different type of techniques which is related to directly with our language. First of all, classical conditioning by Ivan Pavlov and operant conditioning is by B.F. Skinner. So who was Pavlov? Ivan Pavlov was a famous Russian psychologist. He lived from 1849 to 1936. He made many discoveries in psychology. Pavlov won the Nobel Prize in psychology. Classical conditioning is given by Ivan Pavlov, which is a learning technique associated with relation between stimulus and its response. Classical conditioning involves the interplay between three elements. First of all, conditioned stimulus, second one is unconditioned stimulus, and last one is conditioned response. बेसिकली जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो थ्री मेन इंटरप्लेस पे डिपेंड कर रही है. कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन रिस्पॉन्स क्या बनता है. वो किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है. तो उस पर बेसिकली इवन पैवलव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि डॉग्स पे था. अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने ऑब्जर्वेशन की थी कि किस तरह से हम एक अनकंडीशन स्टिमुलर को यूज करके इस रिस्पॉन्स को कंडीशन कर सकते हैं. Pavlov conducted an experiment on dog, and he measured the amount of saliva secreted by a dog with the use of surgical procedure when it was exposed to different stimulus. At first, when Pavlov presented a piece of meat to the dog, he noticed a great amount of salivation. Wherein second time when he rang a bell, he observed there was no salivation. Then after this, Pavlov rang the bell accompanied with meat and noticed the salivation of dog. He repeated this process several times, and finally one day he just rang the bell without meat and observed that dog still salivated to the bell along which was originally a natural stimulus. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग को मीट दिया, देन क्या हो गया, सलाइवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. देन उसने क्या किया, बेल को रिंग किया. देन उस टाइम पे कोई स्लाइवेशन नहीं थी. फिर उसने क्या किया कि जो मीट उसको प्रोवाइड किया उससे उसके साथ बेल को भी उसने अकोमोडेट किया. तो उससे क्या हो गया कि डॉग की कंडीशनिंग हो गई कि जब भी मुझे फूड मिलेगा तो उसके साथ बेल की आवाज़ आएगी. देन उसने उसको खाली मीट के अलावा खाली बेल बजाई तो देन स्लाइवेशन स्टार्ट होगी. मीन डॉग उस जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसका कंडीशन हो गया, और वो अनकंडीशन स्टिमुलाई जो कि बेल थी उसके ज़रिए से उसने डॉग के रिस्पॉन्स को कंडीशन कर दिया. For better understanding, you can see here how dog training works. First of all, before conditioning, food जो है प्रेजेंट किया गया, देन उसका रिस्पॉन्स क्या था कि स्लाइवेशन. अब इसमें फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, और स्लाइवेशन इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स है. देन बिफोर कंडीशनिंग बेल जो है वो क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है. देन नो स्लाइवेशन हो रही है, मीन नो कंडीशन रिस्पॉन्स है. यहाँ पर स्लाइवेशन हो रही थी तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, लेकिन स्लाइवेशन नहीं हो रही तो मीन्स नो अनकंडीशन रिस्पॉन्स. देन बेल के साथ फूड को प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग कंडीशनिंग. अब ये क्या हो रहा है कि बिफोर कंडीशनिंग से पहले ये रिस्पॉन्स था डॉग का. देन ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, बेल एंड फूड के साथ वो स्लाइवेशन हुई, मीन अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ. देन आफ्टर कंडीशनिंग बेल को खाली जो बजाया गया विदाउट फूड विदाउट मीट, देन क्या हो रही है, स्लाइवेशन फिर भी हो रही है. तो क्या हो गया, रिस्पॉन्स उसका कंडीशन हो गया. Here come four components of condition: the conditioned stimulus, the unconditioned stimulus. First of all, the unconditioned stimulus is one that unconditionally, naturally and automatically is our response. Then the unconditioned response is the unlearned response that occurs naturally in response to the unconditioned response. Then the third one is the conditioned stimulus, is previously natural stimulus that after becoming associated with the unconditioned stimulus eventually comes to trigger a conditioned response. Then the last one is the conditioned response, is a learned response to the previously natural stimuli. Then most important key figure है classical conditioning का John B. Watson. J.B. Watson was a famous American psychologist. He lived from January 9, 1878 to September 25, 1958. Established the psychological school of behaviorism. अब बेसिकली ये जो की फिगर है ये किससे रिलेटेड है, बिहेवियरिज्म से. और जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग या ओपन कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर लर्निंग हो रही है. हम बिहेवियर को कंडीशन कर रहे हैं, बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो मीन्स रिलेटेड टू बिहेवियर है. तो बिहेवियरिज्म का जो इंपॉर्टेंट की फिगर है वो है J.B. वॉटसन. अब J.B. वॉटसन का जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली वो क्या था,
In J.B. Watson experiment, fair response was conditioned in a young baby known Little Albert. The child initially showed no fear of a white rat, but after the presentation of the rat was paired with loud scary sound, the child would cry when the rat was present. The child also generalized to other fuzzy objects. अब जेबी वॉटसन का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी किससे रिलेटेड है, इसमें हम एक बिहेवियर को उसकी रिस्पॉन्स को चेंज कर रहे हैं. अब खाली अगर आप एक बच्चे को रैट दिखा रहे हैं तो उससे डर नहीं रहा, लेकिन अगर उसके साथ आप उसका साउंड चेंज कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर कंडीशन हो रहा है कि मुझे इस चीज़ से डरना चाहिए. तो इस जो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है वो जेबी वॉटसन ने कंडक्ट किया था. Elements of classical conditioning, Little Albert experiment. Albert experiment presented an example of how classical conditioning can use an emotional response. अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इमोशनल रिस्पॉन्स आपका एक स्टिमुलाई हम के जरिए से उसको कंडीशन कर रहे हैं. तो अब इसमें नेचुरल स्टिमुलाई क्या है, दी वाइट रैट, जो हमने रैट यूज किया है वो क्या है, वाइट रैट जो उसकी एक्सपेरिमेंट में यूज है. देन अनकंडीशनल स्टिमुलाई इज द लाउड नॉइस एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज फेयर एंड कंडीशनल स्टिमुलाई इज द वाइट रैट एंड द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज फेयर. अब इसमें जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, फेयर का आ रहा है, जो कि पहले नहीं था लेकिन हमने उसको कंडीशन किया. तो वाइट रैट के साथ जब हम उसके बेल को बजाया जो कि हमने उसमें यूज की हैमर की मदद से, तो वो क्या हो गया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फेयर का, जो उसकी इंटेंसिटी हाई हो गई. Here's come operant conditioning by B.F. Skinner, an American psychologist, behaviorist, author, inventor, and social philosopher, born 20 March 1904 and died in 18 August 1999. Known for operant conditioning chamber and radical behaviorism. अब ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली जो B.F. Skinner का काम है वो operant conditioning से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या करते हैं, पनिशमेंट यूज करते हैं, हम रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं एक बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए. So what was the B.F. Skinner experiment? A hungry rat was placed in the Skinner box and every time it pressed the lever it was rewarded with a food pellet in the food dish was used to reinforce its behavior. अब इसमें क्या है कि एक हंग्री रैट को क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, फिर उसको जब भी उसने उस लीवर को प्रेस करने, उसमें क्या हो रहा है कि उस लीवर को किस तरह से प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपको फूड मिलेगा जब आप लीवर को प्रेस करेंगे. तो इसमें क्या हो रहा है, एक रिस्पॉन्स को हम कंडीशन कर रहे हैं, किस तरह से उस बिहेवियर की कंडीशनिंग कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि जब वो रैट जो है वो लीवर प्रेस करेगा देन उसको उसके रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, फूड मिलेगा. तो रिवॉर्ड क्या है कि एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं. हियर यू कैन सी B.F. Skinner एक्सपेरिमेंट जो कि उसने रैट पे किया था. तो उसका रिजल्ट क्या था, रैट scared around the box, randomly touching parts of the floor and wall. The rat accidentally touched lever and food pellet was released. The same sequence was repeated and with more trail. The time taken to press the lever eventually decreased. The random movements of rat became deliberate. The rat ate the food as fast as they could press the lever. अब उसमें क्या हो रहा है कि जब हम क्या करते हैं, एक्सीडेंटली एक चीज़ को परफॉर्म कर देते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट में भी ये हुआ कि उसने एक्सीडेंटली लीवर को प्रेस कर दिया. देन अब वो क्या हो रहा है, उसके बाद उसको समझ आ रही है कि जब ये लीवर ऐसे प्रेस होगा उसके बाद जो है मुझे फूड मिलेगा. तो इस तरह हमने उसके रिस्पॉन्स को ट्रिगर करके उस लीवर के जरिए से उसको कंडीशन कर दी. स्किनर proposed 3 types of response that follows behavior. First of all, natural response, reinforcement, positive reinforcement and negative reinforcement. अब reinforcement की भी 2 टाइप्स हैं. natural response क्या है, the response do not increase or decrease the probability of action being repeated. अब नेचुरल रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो क्या है कि वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, जो भी एक्शन आ रहा है. देन रीइंफोर्समेंट क्या है, देयर आर रिस्पॉन्सिव टू अ बिहेवियर विच आर डिजाइन टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर विल रिपीटेड. अब रीइंफोर्समेंट के जरिए क्या है, हम एक बिहेवियर की लाइक्लीहुड को इंक्रीज कर रहे हैं कि वो दोबारा से रिपीटेड बिहेवियर वो उस लीवर को प्रेस करेगा, ताकि वो क्या हो रही है, रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस हो रहा है कि उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, मीन्स उसको खाना मिल रहा है. तो अब रीइंफोर्समेंट भी 2 तरह की हो सकती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज वेयर प्लेजेंट स्टिमुलाई सच इज फूड प्रोवाइडेड फॉलोइंग द डिजायर्ड बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज वेयर नेगेटिव स्टिमुलाई इज टेकन अवे फॉलोइंग द डिजायर्ड बिहेवियर. अब इसमें हो सकता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में फूड जो है वो दिया जा रहा है, उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक डिजायर्ड बिहेवियर है. लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ उसको प्रोवाइड की जा रही है जो कि उसकी डिजायर्ड बिहेवियर नहीं है, तो मीन्स ये वो क्या हो रही है, उसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है. अब आप इसको क्लासरूम बिहेवियर से इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ कर सकते हैं. हम एक बच्चे को टास्क देते हैं कि आपने ये अगर होमवर्क
इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लिया, जो कि आपको क्लास वर्क हो सकता है, तो अगर इतने टाइम पीरियड में आपने कंप्लीट कर लिया तो इसकी आपको कैंडी मिलेगी। तो छोटे बच्चों के लिए वो क्या है, वो रिवॉर्ड है, उसके ज़रिए क्या हो रही है, उनकी रीइंफोर्समेंट हो रही है। अब आप इसी एग्जांपल को अगर आप किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर या क्लिनिकल सेटिंग में ले जाते हैं, तो आप एक जो आपका क्लाइंट है उसको आप कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ इतने घंटे में या किसी भी उस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो आपको अपने घर वालों से बात करवाई जाएगी, आपको इतने घंटे टीवी देखने दिया जाएगा। तो मीन्स उसको क्या दे रहे हैं, हम रिवॉर्ड दे रहे हैं और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ सके। Then the second time is punishment or responses to a behavior which are designed to decrease the probability of behavior will repeated. Positive punishment and negative punishment. Positive punishment is related to negative stimuli as it follow the undesired behavior, and negative punishment is where positive stimuli is taken away from the undesired behavior. अब जिस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है, उस तरह पनिशमेंट भी इसी तरह है कि हम जब उसको डिजायर्ड बिहेवियर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उसकी जिस चीज़ के बारे में उसको फोकस है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली उसको पनिश कर रहे हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उस डिजायर्ड बिहेवियर को उससे अवे लेके जा रहे हैं, तो वो उसका रिस्पॉन्स इन अ नेगेटिव सेंस आ रहा है। Here you can clearly see the difference between positive, negative reinforcement and punishment. अब positive reinforcement हो रही है तो क्या करें, पॉजिटिव अप्लाई स्टिमुलस, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है, मीन रिमूव स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव उसकी रीइंफोर्समेंट की तरफ जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर, पनिशमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। Here comes classical conditioning in classroom. Teachers can use classical conditioning to quiet down the students. For example, first day of class, student walk into class and teacher sits at desk. Teacher goes towards board when ready to teach and children quiet down. Second day of class, student are chitty when the teacher goes to the board. Teacher asks to be quiet. Third day of class, student are automatically quiet when the teacher walk to the board. Teacher can be used classical conditioning to quiet down the students. For example, first day of class, the teacher turns on the projector to do their lessons and student quiet down. Second day of class, the students are still chatty when the projector turns on. The teacher must ask them to quiet down. Third day of class, the student quiet down when the projector is turned on. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग किस तरह से हो रही है कि हम वो प्रोजेक्टर को ऑन करने से पता चलेगा कि अब टीचर जो है पढ़ाना स्टार्ट करने वाली है, तो बच्चे जो है वो क्वाइट डाउन हो जाएंगे। Then in a conclusion, student will be conditioned in a positive manner and student will learn to expectation of their teachers and student will learn to expectation of their school. That's all from today's lecture. If you have any kind of question, you may ask. Thank you so much.